So today we are going to see how to create a list and how to insert creating a one node, and how we will continuously keep on inserting a node into a list. That is, and this insertion will be done from the end of the list. Okay, means if the list is like this, if one node is created like this and like this, if the one node is created like this, and for the next time when the next node comes, it will be inserted at the end of the list. Okay, so we will see this how it gets generated and how it gets linked with the previous node. Okay, so this is the code of it. So with the code we will try to see how it is working. Okay, initially, you, as we know that how to define the define this node. This node is defined by your user defined data type, because it is a two datas are being stored in this node, right? One is data part and the other part is the other part is this address part. This part stores the address part. This, in this node, one part is storing data and the other part is always storing the next is the name of the address part, that pointer that I am taking, that will be the storing the address of the next node. Okay, so this node is of what type? That is struct node type. So this address, this pointer will be of what type? That is struct node type. As I have taken this structure as a this structure I am defined as the struct node, so it will be of its pointer, that the address part will be pointing to the node that is of struct node type. Okay, so we'll see how it works. Okay, now we'll see how it works. See, initially I am taking two pointers, three pointers, that is head pointer, new pointer and new node pointer, and one more is temp. Okay, so these things are being initially what it has been done, null. Okay, these pointers, and these pointers are also what type? That is struct node type. Okay, these are all of struct node type. Now what we are doing, we are entering the while loop. Okay, first what we are doing, that is create, matlab we are using malloc. With this malloc, what we can do, we can create or you can say it is a dynamic memory allocation. We are allocating a memory. Okay, we are allocating memory from the main memory, you can say. Okay, so with this calloc, how much memory you are allocating? That is of structure node type. This much memory means this is of how much memory it is taking, that is this is 4, and for the address part it is 4. This is 4 plus 4, 4 bytes memory we are allocating. That is 4 plus 4, that is 8 byte memory we need to create one node. Okay, this, so malloc is taking this is assigning, or you can say creating a memory location, and as malloc is returning a void pointer, means when this block of memory is being allocated, a address is generated over there. Okay, means the first starting address, means if it is, this is the memory block, if this is kind of your memory block, and if the address starts, maybe the address is starting from 10100. Okay, address is starting from 100. So from this position, the memory is allocated, and means it is continuing till 8 byte, means 8 byte of memory is being allocated. That is at the last, what the address will be at the last, that is 108. Okay, so the first starting address for this node is being allocated, and this address is being returned by the malloc. Okay, this address is being returned by the malloc. That is and this address, who will hold this address? Any variable. If we declare any variable, and there is a location, right? For every variable there is a memory location, and if we want to store this address,
if the memory location variable's address is 10, so we have to hold it in a pointer variable, right? If this is the pointer variable, it will hold the address of that variable. And if it is an integer type, if this variable is an integer type, so this pointer should be also of integer type, right? So similarly, for this case also, malloc when returns this address, initially it returns as a void pointer. Means void means there is no return type. There is no return type of this pointer. Maybe this pointer is being returned by the malloc by default, but it has no data type. Okay, means it can be typecasted to any kind of data type. So what we are doing, as this is of struct node type, so we are typecasting it to the struct node pointer. Okay, so by this way we are typecasting it. Typecasting it. Okay, so by this way we are typecasting it. And now to after this typecasting, we on which pointer we can now allocate this address. Now what we are doing now, we are allocating this memory to a new pointer. That is the pointer that we have taken, that is new pointer, new node as a pointer. So now this address is being pointed by new node. Okay, this node has been created, and this address is assigned to the new node pointer. Means this is if it is a pointer, what will it hold? It is also a structured type. So is what address will it hold now? That is 100. Now that is new pointer is pointing to the newly created node. Okay, next. What is it doing? Scanf, that is you are asking for the value. As I told you, this node will be having two parts, that is data part, and the other part is the address of the next node. So initially it is empty, so we have to assign some value, means we have to keep some information into it. So what we will do, that is scanf, you are scanning the so we want to scan the value to insert that value in here. So what you are doing, that is scanf %d, that is and person, as if you call how to scan. Okay, and person new node, that is arrow of data, means you are calling the data member, means you are calling this member, data member of this your defined structure. Okay, so if you want to call this member, so what we are using our arrow operator. So what is it doing? New node data. If we call like this, we are calling this part, means we are in this total memory location, we are calling this data part, integer part, that we want to store the value. So once we call this, so we are scanning. Now if you think that if you are scanning 5 over here, you have entered 5. So what will we do? It will be, this 5 will be initialized over here. ठीक है, तो ये 5 यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाता है, तो ये 5 यहाँ जाके स्टोर हो गया. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, इस डेटा मेंबर को कॉल कर लिया, एक नोड में वो एड्रेस भी डेटा भी स्टोर कर दिया है. नेक्स्ट क्या होता है? न्यू नोड नेक्स्ट इक्वल्स टू नल. मतलब अब इसका जो एड्रेस पार्ट है उसमें मुझे तो कोई एड्रेस देना पड़ेगा. अभी तो कोई न्यू नोड नहीं है, मतलब आगे किसी नोड का लिंकिंग पार्ट नहीं है. सो इनिशियली दिस एड्रेस पार्ट विल बी होल्डिंग नल. ओके, इनिशियली इट विल होल्ड नल. अभी नल होल्ड करके रख रहे हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, अब क्या करते हैं? नल हो गया. नाउ वी हैव टू पॉइंट दिस हेड. एज आई टोल्ड यू, लिंक लिस्ट में एक हेड पॉइंटर होता है जो कि पॉइंट करता है जो फर्स्ट नोड है, जो फर्स्ट नोड है उसको पॉइंट करता है. तो इनिशियली क्या हो रहा है कि इफ अब कंडीशंस होल्ड कर रहे हैं. ठीक है, कि इफ हेड इक्वल्स टू नल, इफ हेड इक्वल्स टू नल, देन हेड और टेम्प्ट को न्यू नोड को लोकेट कर दो. मतलब न्यू नोड का जो वैल्यू है, न्यू नोड इज होल्डिंग व्हाट नाउ 100. तो these are also pointer. What these pointers will hold? These are also struct node pointers. Okay, struct node type pointers. So
what this will hold, this will also can hold the address of a node. So इस new node का जो value है, new node का value अभी क्या है, that is 100. तो assign this 100 to temp and head. तो temp और head का value अभी क्या हो गया, head equals to 100 and temp is equal to also 100 now. Okay, so now this head and temp will be pointing over where, here. So head will be, मतलब logically if we view that head and temp where it will be pointing, this new node that has been created उसको point कर रहा है अभी, ये head, temp और head. Okay, next. अभी तो ये एल्स पार्ट में इफ कंडीशन हो गया तो एल्स पार्ट में नहीं गया. सो आई हैव टेकन अ काउंटर वेरिएबल. ओके, एक काउंटर वेरिएबल ले लिया. काउंट वेरिएबल, काउंटर नहीं काउंट. ओके, उससे क्या होता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इस यूजिंग दिस, अगर ये लूप के अंदर चलता रहता है, वाइल लूप के अंदर चलता है, तो जितनी बार ये वाइल लूप कॉल होगा इट काउंट विल बी इंक्रीमेंटेड. तो इससे क्या होगा, तो हमें पता चलेगा कि कितने सारे नोड्स क्रिएट हुए हैं. एट द एंड ऑफ द लूप इफ यू वांट टू प्रिंट दिस वैल्यू, यू कैन से दिस मेनी नोड्स हैज बीन क्रिएटेड. सो नाउ काउंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, काउंट equals to 1, right? count plus plus count equals to 1. इनिशियली यहाँ पे डिफाइन कर लो, count equals to 0 करके इनिशियलाइज कर कर. now count is equal to 1. now what we want to do, now again you are asking the user that do you write a print statement that do you want to continue, means do you want to continue this insertion process. If you want to continue, then press 1 for insertion or 0 for exit. Okay, 1 for insertion and 0 for exit you want to ask. Okay, now if I press that is 1, means I want to insert some more nodes into it. So again if you press 1, it goes to this while loop, and again it comes to this line. Okay, now what it is happening, now it is again calling malloc function. Again it's calling malloc function. once the malloc function is called, again we are फिर से क्या होता है, वही फिर से नया नोड क्रिएट होता है. फिर से नया नोड कितना टाइप कितना साइज का होगा, वो भी स्ट्रक्ट नोड साइज का. मतलब जो हमने डिफाइन करके रखा है उसमें जितना भी डेटा मेंबर्स हम लोग लिए हैं, तो उसका जो साइज होगा उतना टोटल साइज malloc एलोकेट करेगा. तो अभी नया नोड क्रिएट हुआ है, मान लो, तो अब नया नोड क्रिएट हुआ है दैट इज ऑफ 8 बाइट अगेन. ओके, एक 8 बाइट का डेटा नोड अगेन फिर से क्रिएट हुआ और उसमें भी एक डेटा पार्ट है, एक हो गया एड्रेस पार्ट. ओके, फिर क्या होता है, क्रिएट हो गया. ओके, नाउ क्रिएट होने के बाद फिर से मैंने क्या बोला कि उसका जो बोले हैं कि उसका जो एड्रेस है दैट इज, मतलब बाय डिफॉल्ट जो एड्रेस है वो वॉइड पॉइंटर होता है. वॉइड पॉइंटर मतलब उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, दैट इज वो वॉइड पॉइंटर पीटीआर मान को कुछ भी हो, वेरिएबल हो, तो ऐसे रिटर्न करता है. तो इसमें क्या एड्रेस होल्ड करके रखता है, ये वाला. ठीक है, अब मुझे इसको टाइप कास्ट करना है, मतलब इसमें क्या टाइप का डेटा एंट्री होगा, तो उसको हम लोग टाइप कास्ट करके क्या करते हैं, दैट इज स्ट्रक्ट नोड. अभी के लिए हम लोग स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टाइप में इसको टाइप कास्ट करते हैं. ठीक है, तो ये वाला भी कर दिया, यहाँ पे टाइप कास्ट भी कर दिया. नाउ ये जो एड्रेस है टाइप कास्ट करने के बाद वो कौन से वेरिएबल में, मतलब पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, दैट इज न्यू नोड पे. मतलब इनिशियली माय न्यू नोड वैल्यू वाज 100. ठीक है, अभी इस स्टेटमेंट के बाद जब ये नया नोड क्रिएट हो गया, इस स्टेटमेंट के बाद न्यू नोड का वैल्यू क्या हो जाएगा, न्यू नोड विल बी नाउ 100 से मिट के 200 होल्ड करेगा, क्योंकि अभी जो न्यू malloc कॉल हुआ है उसका जो एड्रेस है, मान लो 200 एड्रेस 200 में मेमोरी एलोकेट हुआ है, तो वो 200 विल बी असाइन टू द न्यू नोड. तो मतलब न्यू नोड पहले इसको पॉइंट कर रहा था, अब न्यू नोड किसको पॉइंट करेगा, न्यू नोड विल बी पॉइंटिंग दिस newly created node. Okay, now next what it happens, see again you are trying to insert a value. अब तो मुझे इसमें वैल्यू डालना है, दैट इज न्यू नोड डेटा पार्ट में. न्यू नोड की जो डेटा पार्ट है, मतलब न्यू नोड यू आर कॉलिंग,
न्यू नोड जो पॉइंटर है, जो पॉइंटर से तुम्हें इसको कॉल करना, मतलब इसी डेटा मेंबर से ही तो हम इसी को कॉल कर सकते हैं ना। तो डेटा मेंबर कॉलिंग न्यू नोड का डेटा मेंबर इज कॉलिंग डेटा ऑफ दिस स्ट्रक डेटा टाइप। ओके, ये जो नोड का जो स्ट्रक्चर है उसका जो डेटा मेंबर है उसको कॉल कर रहे हैं, उसको कॉल किए और उसको उसमें क्या किया, उसमें वैल्यू इनिशियलाइज करना चाहते हैं। नाउ थिंक दैट यू आर इनिशियलाइजिंग 7, ठीक है। नाउ यू आर इंसर्टिंग 7, सो यू हैव इंसर्टेड 7 ओवर हियर। नाउ not clear. Okay, now you are initializing 7 over here. Okay, now what you are doing next is the new node next, मतलब न्यू नोड अभी किसको पॉइंट कर रहा है, ये नया नोड जो नोड क्रिएट हुआ है, तो उसका जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, उसका नेक्स्ट, मतलब उसका नेक्स्ट को कॉल करेंगे तो कौन से पार्ट को डिफाइन करेगा, न्यू नोड का ये वाला पार्ट को। तो उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वी आर कॉलिंग लाइक दिस न्यू नोड नेक्स्ट। ऐसे करके हम लोग कॉल कर सकते विद दिस एरो ऑपरेटर, और यू कैन यूज एज अ डॉट ऑपरेटर। ओके, सो आई एम यूजिंग एरो ऑपरेटर, इट लुक्स यू कैन से इट गिव्स अ विजुअल इफेक्ट एज वेल। ओके, सो दिस एरो ऑपरेटर से नेक्स्ट वाला जो डेटा जहाँ पे एड्रेस स्टोर रहता है उसको कॉल किया। सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इनिशियलाइजिंग ओवर हियर नल, क्योंकि न्यूली क्रिएटेड नोड का आगे हमें पता नहीं क्या होगा, तो इसके लिए जो एड्रेस पार्ट है अभी तो नेक्स्ट नोड तो क्रिएट नहीं हुआ, सो यहाँ पे क्या एड्रेस स्टोर करके रख रहा है, दैट इज अभी नल, मतलब कोई भी एड्रेस नहीं है। ओके, सो नाउ हियर व्हाट वी हैव डन, नाउ हियर वी हैव असाइंड नल। ओके, नाउ सी, नाउ दिस 2 न्यू नोड्स आर बीन क्रिएटेड, ये पहले नोड क्रिएट हुआ था और अभी नया नोड ये क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो अब हमें इन दोनों के बीच में लिंक तैयार करना है ना। लिंक मीन्स ये अगर मैं यहाँ से एक्सेस करना शुरू करूँ और मुझे पता है कि मैंने दो नोड्स क्रिएट किया है, तो इट शुड हैव सम कंटिन्यूटी बिटवीन द मेमोरी लोकेशंस, राइट। सो हेड पे जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, हेड विल बी पॉइंटिंग ओवर हियर, हेड यहाँ पे आया बिकॉज हेड इज 100, सो हेड इसको पॉइंट किया। फिर नेक्स्ट टाइम अगर मुझे 2 नोड पता है तो मतलब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, मतलब इसका जो नेक्स्ट पार्ट नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है, इट शुड होल्ड द एड्रेस ऑफ दिस पार्ट, दिस न्यूली क्रिएटेड नोड। तो इसके लिए क्या है, ये 200 इसको यहाँ पे स्टोर करना है, मुझे सेव करना है, तभी जाके ये बोल सकते हैं कि इसके बाद जो नोड पॉइंट करेगा दैट इज दिस। तो उसके लिए कहाँ पे जाते हैं, फिर से वही इस वाले पार्ट पे जाते हैं कि लिंक क्रिएशन, दिस कंडीशंस आर फॉर लिंक क्रिएशन। ओके, इसमें क्या बोलते हैं, see if head equals to null, now your head value is 100, so head is not null, तो ये कंडीशन फेल होता है। now we are coming in the else part में आके क्या बोलते हैं, that is temp का जो नेक्स्ट है, तो temp का जो नेक्स्ट है, मतलब temp is where it is pointing now, temp is pointing over here, so temp का जो नेक्स्ट है, टेम्प का जो नेक्स्ट है दैट इज उसमें क्या वैल्यू असाइन करो, दैट इज न्यू नोड का वैल्यू असाइन करो। न्यू नोड का वैल्यू अभी क्या है 200 इज बीन असाइन टेम्प नेक्स्ट, मतलब टेम्प अभी इसको पॉइंट कर रहा है, ये वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, दिस नोड को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि टेम्प का वैल्यू क्या है 100, सो टेम्प इज पॉइंटिंग टू दिस लोकेशन, राइट। सो उसका जो नेक्स्ट पार्ट है, मतलब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट उसका जो डेटा मेंबर है ये वाला है, तो इस वाले डेटा मेंबर पे जाके तुम बोल रहे कि व्हाट इज न्यू नोड का जो वैल्यू है, न्यू नोड का वैल्यू है कितना 200, तो उसको स्टोर कर दो, मतलब सेव कर दो, दैट इज 200 हैज बीन स्टोर्ड हियर नाउ। ओके, 200 is stored over here now. So once 200 is stored, मतलब क्या है कि मतलब अब logically if you want to say, now you can say that there is a link is generated between these 2 nodes, मतलब अभी ये नोड से इस नोड को भी लिंक कर दिया, मतलब क्योंकि इसका एड्रेस अभी इसके पास है ना, तो मतलब इसको एक्सेस करने के बाद नेक्स्ट वी नो टू विच मेमोरी लोकेशन वी हैव टू गो, सो दैट इज बीन स्टोर्ड ओवर हियर। नेक्स्ट व्हाट इज द नेक्स्ट लाइन बोल रहे हैं कि टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड, मतलब अभी टेम्प क्या है 100, मतलब टेम्प का वैल्यू कितना है 100 और न्यू नोड का वैल्यू कितना है 200, बोल रहे कि 200 को टेम्प में असाइन कर दो, मतलब अभी टेम्प का वैल्यू पहले 100 था, नाउ ये मिट के कितना हो जाएगा, दैट इज 200।
ओके। सो टेम्प्ट 200 हो गया, तो मतलब ये टेम्प्ट अभी लॉजिकली व्यू देखोगे तो क्या हो जाएगा, मतलब टेम्प्ट अब इस नोड को नहीं पॉइंट कर रहा, अब मेरा जो न्यू टेम्प्ट है, टेम्प्ट इज नाउ पॉइंटिंग दिस नोड। ओके, टेम्प्ट इज नाउ पॉइंटिंग ओवर दिस नोड बिकॉज टेम्प्ट का वैल्यू अभी 200 हो गया। ओके, नाउ दिस एल्स पार्ट से निकल गया। और नाउ काउंट का वैल्यू क्या होता है, काउंट प्लस प्लस। नाउ व्हाट इज द काउंट वैल्यू, काउंट वैल्यू इज नाउ 2, मतलब 2 नोड क्रिएट हो चुका है और लिंक भी हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगेन यू आर आस्किंग स्कैनफ व्हाट डू यू वांट टू कंटिन्यू, मतलब डू यू वांट टू कंटिन्यू और डू वांट टू एग्जिट। ओके, तो मैं फिर से 1 प्रेस करता हूँ तो चॉइस लेता है 1, सो अगेन इट गोज इनटू द while loop, again it goes to the while loop। तो फिर से while loop के अंदर आते ही फर्स्ट वाला क्या स्टेटमेंट है, again you are creating a new node। again now you think that you are with malloc function you are creating a new node, with malloc function you are now again creating a new node। इज इट क्लियर। सो न्यू नोड में वही स्ट्रक्ट नोड टाइप का है, तो न्यू नोड क्रिएट हो गया और एक कोई भी एड्रेस मान लो, एड्रेसेस 300 उसने रिटर्न किया है। ठीक है, सो जैसे एड्रेस रिटर्न किया हमने वो क्या कर दिया, न्यू नोड पे असाइन कर दिया, सिमिलर लाइक बिफोर ओनली। तो न्यू नोड पे असाइन कर दिया, तो न्यू नोड का वैल्यू अब कितना हो गया, पहले 200 था, अब उसका वैल्यू मिट के कितना हो जाएगा, दैट इज 200 से हो जाएगा 300, क्योंकि हमने जो न्यूली क्रिएटेड नोड है उसका जो एड्रेस है, मैलॉक जो एड्रेस रिटर्न कर रहा है वो एड्रेस हमने न्यू नोड को असाइन कर दिया है। सो न्यू नोड इज नाउ होल्डिंग 300। तो जैसे 300 होगा तो मतलब इसका लॉजिकली मतलब क्या हो रहा है, मतलब 300 होल्ड कर रहा है, मतलब न्यू नोड इज नाउ पॉइंटिंग, न्यू नोड का जो न्यू नोड पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, ये वाला जो नया नोड क्रिएट है उसको पॉइंट कर रहा है, अभी इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या बोलते हैं कि उसका जो डेटा पार्ट है, न्यू नोड इसको पॉइंट कर रहा है, उसका जो डेटा पार्ट है उसमें वैल्यू असाइन करो। सो व्हाट with this scanf you are assigning a value into the data part। डेटा पार्ट में जाके डेटा वैल्यू असाइन किया, मान लो अब मैं लेता हूँ 8 वैल्यू 8, तो 8 is now assigned over here। ओके, मतलब इंसर्टेड ओवर हियर, स्कैन्ड एंड इंसर्टेड ओवर हियर। नेक्स्ट व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट, जो भी मुझे नया नोड क्रिएट होता है उसका जो डेटा एड्रेस पार्ट है उसको क्या करना है, नल करना है। तो फॉर दैट वी आर नाउ calling this, we are going through this statement, that is new node next। न्यू नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है, मतलब ये लिंकिंग पार्ट जो जिसको बोलते हैं, तो लिंकिंग पार्ट में क्या बोल रहे हैं कि नल इंसर्ट कर दो, मीन्स एड्रेस अभी नल होल्ड कर रहे हैं, नल होल्ड किया। ओके, इज इट क्लियर, नल होल्ड किया। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, now what is the case, null होल किया, now we are again doing, अब इतना तो मेरा लिस्ट पहले से बना हुआ था, अब मुझे नया वाला लिस्ट बनाना है, नया वाला नोड क्रिएट करना है। तो नया वाला नोड तो क्रिएट हो गया, अब इन दोनों के बीच में लिंक जनरेट करना है। लिंक जनरेट करेगा तभी ना एक सीक्वेंस में रहेंगे, जब भी हम लोग यहाँ से एक्सेस करना शुरू करेंगे तभी जाके ये तीनों नोड्स एक्सेस हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम व्हाट इज सेइंग that if head equals to null, मतलब ये लिंक जनरेशन पार्ट पे आए, दिस ये जो कंडीशन है लिंक जनरेट करने के लिए, if head equals to null, no, head का वैल्यू अभी क्या है 100 ही है, so head is not null, so it will come to the else part। else part में क्या बोल रहे हैं, टेम्प्ट का जो नेक्स्ट है, टेम्प्ट अभी हमारा कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, दैट इज 200, सो टेम्प्ट इज पॉइंटिंग ओवर हियर। तो टेम्प्ट ये वाले नोड, मतलब हियर मींस ये वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, तो टेम्प्ट का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें बोल रहे कि न्यू नोड का वैल्यू डाल दो, तो न्यू नोड का वैल्यू क्या है, दैट इज 300। तो टेम्प्ट का जो नेक्स्ट पार्ट है, मतलब ये टेम्प्ट डेटा बोलूंगा तो ये इसको पॉइंट करेगा। टेम्प्ट अगर ऐसे लिखती हूँ, टेम्प्ट डेटा ऐसे लिखते हैं तो इट विल विच पार्ट इट विल पॉइंट, इट विल बी पॉइंटिंग ओवर हियर। ठीक है, इसको कॉल कर रहे हो मतलब, और टेम्प्ट नेक्स्ट कर रही हो तो मतलब अगर बोल ऐसे कॉल कर रही हो तो मतलब ये इस वाले मतलब डेटा एड्रेस वाले पार्ट को कॉल कर रहा है। ठीक है, तो बोल रहे कि टेम्प्ट जो नेक्स्ट पार्ट है, टेम्प्ट नेक्स्ट में न्यू नोड का जो वैल्यू है, न्यू नोड इज 300, असाइन दैट वैल्यू देयर, मतलब न्यू नोड इज नाउ 300
300 is stored in the temp next. Okay, so here अभी वैल्यू कितना हो जाएगा, नल से मिट के अभी 300 हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट इज सेलिंग, न्यू नोड का जो वैल्यू है, न्यू नोड का वैल्यू अभी कितना है, दैट इज नाउ 300 असाइन इट टू द टेम्प्ट। टेम्प्ट का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, टेम्प्ट का वैल्यू अभी 200 है, मतलब इसको पॉइंट कर रहे हैं, तो अभी बोल रहे कि 200 से मिट के अब 300 हो जाएगा, क्योंकि वी आर असाइनिंग दिस वैल्यू टू टेम्प्ट। ओके, सो नाउ ये टेम्प्ट को तुम लॉजिकली देखोगे, मतलब टेम्प्ट में 300 हो गया, मतलब टेम्प्ट अभी इसको ना पॉइंट करके, इस वाले नोड को ना पॉइंट करके, अभी टेम्प्ट इस वाले नोड को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। न्यू टेम्प्ट जो है वो अभी इस वाले नोड को पॉइंट कर रहे हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग नाउ, नेक्स्ट सी वी आर अगेन, तो मतलब लॉजिकली अब क्या कर, व्यू करो, अब लॉजिकली देखो कि मतलब हेड से आया तो 200 इस वाले डेटा को एक्सेस किया, डेटा एड्रेस वाले पार्ट क्या बोल रहे हैं, इस वाले नोड को पॉइंट कर रहे हैं, बिकॉज इट इज होल्डिंग 200, तो हम लोग इस पे आए, इसका डेटा मेंबर को एक्सेस किया। आप बोलते हैं कि इसका अगर एड्रेस पार्ट एक्सेस करोगे, मतलब इसका एड्रेस पार्ट एक्सेस करेंगे तो क्या बोलेंगे कि मतलब इट इज पॉइंटिंग टू 300, सो मतलब लॉजिकली देयर इज अ लिंक नाउ क्रिएटेड बिटवीन दिस, राइट। तो मतलब इसके बाद ये नोड एक्सेस कर सकते हो, फिर ये नोड, नाउ ये लिंक भी क्रिएट हो गया। नाउ इट इज सेइंग काउंट प्लस प्लस, नाउ काउंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 से होके 3 हो जाएगा, नाउ काउंट का वैल्यू इज 3। ओके, मतलब 3 नोड क्रिएट हुआ है, 3 नोड लिंक भी हो गया है, लिंक्ड भी हो गया। नाउ यू वांट टू से दैट डू यू वांट टू कंटिन्यू, मीन्स कंटिन्यू मीन्स इफ यू वांट टू प्रेस 1 then you can again go for insertion or 0 for exit. Now if I press 0 it will come out of the program, or you can do some other work that I want to display the list. Without exit you are writing over here display, यहाँ पे डिस्प्ले मतलब डिस्प्ले वाला फंक्शन भी लिख सकते हो, ठीक है। सो ये जो लिंक 1 जो नेक्स्ट टाइम आई एम प्रेसिंग 0 एंड वी आर गेटिंग आउट ऑफ द प्रोग्राम। सो आफ्टर दिस व्हाट यू कैन सी, मतलब हमने 3 नोड क्रिएट किया है और 3 नोड का ऐसे व्यू हुआ है। सो इज इट अंडरस्टैंडेबल, ओके। हम लोग ये भी देख लेते हैं। सो ये हो गया हमारा अभी ये जो क्या बोलते हैं इसको हो गया, मतलब अभी ये क्रिएशंस हो गया, ठीक है। नाउ इफ यू वांट टू, इफ यू आर प्रेसिंग 0 एंड यू वांट टू डिस्प्ले, इफ आई हैव रिटन डिस्प्ले, सो डिस्प्ले वाला फंक्शन भी एक बार देख लेते हैं, ओके। सो अभी मान लो कि हमारा क्रिएशन हो गया, विद दिस कोड वी हैव क्रिएटेड। नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज द डिस्प्ले, व्हाट इज द डिस्प्ले फंक्शन। ओके, डिस्प्ले करने के लिए क्या करना है, मुझे फिर से यहाँ से ट्रैवर्स करना है, ठीक है। तो मतलब फिर से मैं यहाँ पे जाके मतलब टेम्प जो है, टेम्प इज अ टेम्पररी, व्हाई वी एम टेकिंग एन एक्स्ट्रा पॉइंटर, एक न्यू नोड पॉइंटर हो गया, एक हेड पॉइंटर हो गया, एक ये वाला पॉइंटर क्यों ले रहे हैं, ये एक टेम्पररी, मतलब इसको एक्चुअली ट्रैवर्स कर रहे हैं पूरे लिंक लिस्ट में, ओके। तो अगर हमें डिस्प्ले करना है तो फिर से यहाँ पे आना पड़ेगा ना, तो क्या करेंगे, ये जो टेम्प है, न्यू नोड तो इसको पॉइंट कर रहा है और हेड को हम लॉस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज दिस पॉइंटर ओनली विल से यू वेयर यू आर पॉइंटिंग, वेयर इज द स्टार्टिंग ऑफ द लिंक लिस्ट, ओके। सो हेड पॉइंटर को लॉस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग इस टेम्प को ट्रैवर्स करवा रहे थे, ठीक है। नाउ टेम्प अब अगर हमें डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले करना है तो टेम्प्ट को क्या कर रहे हैं, टेम्प्ट का वैल्यू क्या कर रहे हैं, टेम्प्ट आफ्टर दिस यू कैन राइट, आफ्टर दिस कोड यू कैन राइट दैट इज टेम्प इज इक्वल टू हेड का जो वैल्यू है तुम उसको इनिशियलाइज करो, तो हेड का वैल्यू कितना है अभी 100, और टेम्प का वैल्यू एट द, ये जो कोड लिखा था वाइल लूप के बाद, तो टेम्प का वैल्यू कितना था, दैट इज 300। तो अभी टेम्प का वैल्यू क्या कर दिया, हेड का वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया, मतलब दैट इज 100, ओके। तो मतलब टेम्प्ट अभी यहाँ पे जो पॉइंट कर रहा था, अब जो टेम्प्ट होगा अब किसको फिर से पॉइंट करेगा, दैट इज ओवर हियर, ओके। इज इट क्लियर। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, एक लूप चलाते हैं, क्योंकि हमें ट्रैवर्स करना है ना लिस्ट को, तभी जाके प्रिंट कर सकते हो, दैट इज व्हाइल टेम्प
while temp is equal to जब अब मुझे कहाँ तक चलना है, मतलब जब तक हम लोग पूरा एंड तक नहीं पहुंच जाए। तो temp नॉट इक्वल्स टू नल, ये लूप कब तक चलेगा, मतलब मुझे कहाँ तक प्रिंट करना है, यहाँ तक, मतलब temp जब तक ना नल को पॉइंट करे तब तक हमें चले जाना है, ठीक है। तो temp में क्या कर रहे हैं कि temp का अभी हेड का भी 100 है, temp का भी 100 है। ओके, आई एम रिमूविंग दिस थिंग। ओके, सो व्हाइल लूप क्या कब तक चलेगा, हमें इस वाले नोड तक पहुंचना है। तो temp का वैल्यू जब तक नल ना हो जाए तब तक हम ट्रैवर्स करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, दैट इज वी आर प्रिंटिंग, हमें डेटा प्रिंट करना है ना। तो नाउ temp इज पॉइंटिंग ओवर हियर, इस वाले डेटा को प्रिंट करना है। नाउ यू आर प्रिंटिंग printf %d and you are printing that is temp of data, ठीक है। डेटा को तुम प्रिंट कर रहे हो, ठीक है। इस डेटा को प्रिंट किया। नाउ अब मुझे ये प्रिंट हो गया। अब मुझे किस में जाना है कि उसका नेक्स्ट वाले नोड पे। तो क्या करना है कि temp को ट्रैवर्स करना है, हेड तो ट्रैवर्स नहीं हो सकता है, temp को ट्रैवर्स करना है। तो हाउ विल यू ट्रैवर्स, temp में जो वैल्यू है, अभी temp को क्या कर रहे हो, इनिशियलाइज कर रहे हो, दैट इज temp इज इक्वल टू temp का जो नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट में जो वैल्यू है, मतलब temp नेक्स्ट में क्या वैल्यू है, दैट इज 200। सो 200 अभी यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 200 इज असाइन ओवर temp, ठीक है। देखो temp में अभी वैल्यू हो गया 200, और फिर लूप में से बाहर आ जाओ, फिर ये लूप चलेगा, फिर लूप में जाके चेक करेगा temp इज नॉट इक्वल्स टू नल, बिकॉज temp तो 200 है। तो मतलब फिर क्या बोल रहा है कि उसमें, तो मतलब अभी temp यहाँ पे ना पॉइंट करके नेक्स्ट टाइम नाउ temp विल बी पॉइंटिंग ओवर हियर, temp विल बी पॉइंटिंग ओवर हियर। जैसे ही temp इसको पॉइंट कर रहे तो क्या बोल रहे हैं कि प्रिंट करो, उसका वैल्यू प्रिंट करो, मतलब temp ऑफ डेटा प्रिंट कर दिया, मतलब पहले 5 प्रिंट हुआ, नाउ 7 प्रिंट हुआ। इज इट क्लियर, 7 प्रिंट हुआ, 5 7 प्रिंट हुआ। नेक्स्ट इज दैट, नेक्स्ट इज temp में क्या वैल्यू नाउ असाइन करो, temp का जो नेक्स्ट है, temp का डेटा पार्ट में तो 7 था, temp का नेक्स्ट में कितना है, दैट इज 300। नाउ यहाँ पे 300 जो था दैट इज असाइन इनटू temp में 300 प्रिंट कर दिया, मतलब असाइन कर दिया। नाउ तो temp में अगर वैल्यू 300 है तो मतलब temp अब किसको पॉइंट करेगा, temp विल बी पॉइंटिंग ओवर दिस। ओके, temp इसको पॉइंट किया, दिस इज अ डिस्प्ले फंक्शन, वी आर डिस्प्लेइंग इट। okay, we are displaying it, तो temp is pointing over here. now it is in the while loop जाएगा, तो क्या चेक करें, temp is equals to null, no, temp का वैल्यू तो 300 है, तो उसका जो डेटा पार्ट है उसको प्रिंट करो, मतलब अभी 8 प्रिंट हो जाएगा। और बोल रहे कि नेक्स्ट temp नेक्स्ट मतलब एड्रेस पार्ट, तो temp नेक्स्ट का वैल्यू अब क्या है, temp नेक्स्ट का वैल्यू इज null which is been assigned to temp, तो temp में अभी वैल्यू जाता है दैट इज null। सो अब नेक्स्ट टाइम जब लूप में जाएगा temp नॉट इक्वल्स टू नल, नो, बिकॉज नाउ ये कंडीशन फॉल्स, temp इज इक्वल्स टू नल, सो इट विल कम आउट ऑफ दिस लूप एंड फाइनली यू गेट दिस एज योर डिस्प्ले। यही तो चाहिए था, बिकॉज यही तो हमारा लिस्ट बनाया था हमने, तो ये लिस्ट बन गया। इज इट क्लियर, थैंक यू। this is what we are doing, this is the insertion from the end, creation भी हो गया और insertion from the end of the list भी हो गया, मतलब एक ऑपरेशन हो गया, insertion from end of the list, अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, beginning of the list। इसके बाद देखेंगे कि हम लोग इंसर्शन ऐसे बिगिनिंग में कैसे कर सकते हैं, मतलब जो भी नया नोड क्रिएट होगा वो बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट में कैसे इंसर्ट कर सकता है। इज इट क्लियर, थैंक यू।